السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے علی بن سفیان، سلطان صلاح الدین ایوبی، البرق اور وہ ضعیف اور عائشہ نام کی لڑکی جو جاسوسہ ہے۔ باقی فوج کو سلطان کی ہدایت کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کرے کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں۔ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ خادم الدین البرق جو سلطان ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازداں تھا، سلطان کی ہدایت اور میلے کے شور و غل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا، اس لڑکی نے قبول کر لیا تھا، اس سے دونوں کے لیے سہولیت پیدا ہو گئی۔ البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور اس بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے، وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہیں بتانی شروع کر دی جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ان جگہوں میں ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرق نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے۔ سرکاری حکم کے تحت عارضی قبہ خانے اٹھا لیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان کی گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نپٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا، مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ فڑفڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چین چین کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑ سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنائی دینے لگی۔ اس آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ فڑفڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھی۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آ گئے؟ اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا
सफूफ पिलाई तो जाग न उठी। अलबर्क ने पूछा, क्या तुम उसे शराब में जहर नहीं पिला सकती? आसफा ने कहा, मैंने कभी कत्ल नहीं किया। मैंने तो कभी यह भी नहीं सोचा था कि इस तरह किसी गैर मर्द से मिलने इस डरावने खंडर में आऊंगी। अलबर्क ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। अचानक उनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे में से अलबर्क गुजर कर आया था उसमें से 2 मशालें निकली। ये लकड़ियों के सरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लपेट कर बनाई गई थी। उनके शोले खासे बड़े थे। अलबर्क ने आसिफा को अपने पीछे कर लिया। उसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर है? क्या ये खंडर में रहने वाले बदरूहें थी या लड़की के ताक़ुब में उसका खाविंद आ गया था? अलबर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशाले करीब आई तो उनके नाचते शोलों में अलबर्क और आसिफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें थी। उन्होंने मशाले जमीन में गाड़ दी। खंडर का सहन रोशन हो गया। चारों आदमी अलबर्क के गिर्द भूखे भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसपा उसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज आई, मिल गए, जिंदा ना छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खाविंद की आवाज थी। आसपा अलबर्क के अकब से आगे आ गई। उसने हकारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत भेजती हूं। मैं अपनी मर्जी से यहां आई हूं। चारों मसल्ला आदमी उनके गिर्द खड़े थे। बर्छी वाले ने बर्छी आहिस्ता आहिस्ता आसफा की तरफ की और उसकी नोक उसके पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले यह शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहां आई हो। आसफा ने झपट्टा मारकर बर्छी पकड़ ली और झटका देकर बर्छी छीन ली। आसफा अलबर्क से अलग हो गई और ललकार कर कहा, आओ, आगे आओ। मैं देखती हूं कि तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अलबर्क खंजर आगे किए उसके सामने आ गया। लड़की ने बर्छी से उस पर वार किया जिससे उसने बर्छी छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। उसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने की बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो अलबर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी मगर वार खाली जाता था। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो वह आदमी उसके पीछे आए। आसफा एक ही जस्त में उसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर उन्होंने अलबर्क और आसिफा पर हमले किए। आसफा उन पर टूट टूट पड़ती थी। अलबर्क वार बचाता था और खंजर से वार करने की कोशिश करता था मगर अजीब अम्र यह था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई जख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेग जनी के जौहर दिखाए मगर अलबर्क और आसिफा को खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, और लड़ाई बंद हो गई। मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी दलेर और बहादुर है। अगर इसे मैं जबरदस्ती ले भी गया तो ये मुझे कत्ल कर देगी। अलबर्क ने कहा, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। कहो तुमने उसे कितने में खरीदा था? बूढ़ा हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा और अलबर्क से हाथ मिलाकर बोला, मेरे पास दौलत की कमी नहीं। मैं ये लड़की तुम्हें बख्श देता हूँ। इसे तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी खातिर इतने सारे आदमियों के मुकाबले में आ गई है। मैं इसे इसलिए भी तुम्हारे हवाले करता हूं कि ये जंगजू नस्ल की लड़की है। मैं ताजिर और सौदागर हूं। ये किसी तुम जैसे जंगजू के घर में अच्छी लगेगी। तीसरी वजह यह है कि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत के हाकिम हो। मैं सुल्तान का वफादार और मुरीद हूं। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। जाओ, मैंने इसे तलाक दी और उसे तुम पर हलाल कर दिया। चलो दोस्तों, उन्हें अकेला छोड़ दो। वो मशाले उठाकर चले गए। अलबर्क की हैरत की इंतहा ये थी कि उसके पांव तले जमीन हिलने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे बूढ़े का फरेब समझ रहा था। उसे ये खतरा नजर आ रहा था कि ये लोग रास्ते में घात लगाकर उन दोनों को कत्ल करेंगे। आसिफा के हाथ में बर्छी थी। वो अलबर्क से ले ली और कुछ देर बाद खंडर से निकले। वो दाएं बाएं और पीछे देखते तेज तेज चलने लगे।
जरा सी आवाज सुनाई देती तो वो चौंक कर रुक जाते, हर तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते। शहर में दाखिल हुए तो उनकी जान में जान आई। आसिफा ने रुक कर बाजू अलबर्क के गले में डाल दिया और पूछा, आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? अलबर्क ने उसे सीने से लगा लिया। उस पर जज्बात का इतना गलबा था कि कुछ बोल ना सका। लड़की ने उसे बेदाम खरीद लिया था। उसे ये तो अब पता चला था कि लड़की उसे कैसी दीवानगी से चाहती है और कितनी बहादुर है। दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। उसकी बीवी उसकी हम उम्र थी। आसिफा को देखकर उसने महसूस किया कि वो बीवी उसके काम की नहीं रही। उस दौर में जब औरत फरोख्त होती थी, घर में बीवी की कोई हैसियत नहीं थी। बैक वक्त 4 बीवियां तो खाविंद अपना हक समझता था, लेकिन जो पैसे वाले थे वो 2-4 खूबसूरत लड़कियां बगैर निकाह के रख लेते थे। मुसलमान उम्रा को औरत ने ही तबाह किया था। उनके यहाँ ये भी रिवाज था कि एक आदमी की बीवियां खाविंद की खुशनुदी हासिल करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत लड़कियां खाविंद को बतौर तोहफा पेश करती थी। अलबर्क जब आसिफा को साथ लिए घर में दाखिल हुआ तो सब सोए हुए थे। सुबह उसकी बीवी ने अपने खाविंद के पलंग पर इतनी हसीन लड़की देखी तो उसे जर्रा भर महसूस न हुआ कि उसका सुहाग उजड़ गया है, बल्कि वो खुश हुई कि उसके इतने अच्छे खाविंद को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है। उसके आगे जाने से वो कुछ फराइज से सबकदूश हो गई थी। अलबर्क की हैसियत ऐसी थी कि वो ऐसी एक और बीवी या दाश्ता रख सकता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमान को औरत से और औरत को मुसलमानों से आजाद कराना चाहता था। वो एक खाविंद एक बीवी का हुक्म नाफिज करना चाहता था, मगर अभी वो हर उस अमीर और वजीर को दुश्मन बनाने से डरता था जिसने कई कई लड़कियों को घरों में रखा हुआ था। औरत के खरीदार यही लोग थे। उन्हीं की दौलत से औरत खुली मंडी में नीलाम होती थी, अगवा की वारदातें होती थी, कत्ल और फौज खराज होते थे, और उमरा और हाकिमों के जन परस्ती का ही नतीजा था। ईसाई और यहूदियों ने लड़कियों की वसातत से सल्तनत इस्लामिया की जड़ों में जहर घोल रख दिया था। उसके अलावा सुल्तान अय्यूबी को यह एहसास भी परेशान किए रखता था कि यही औरत मर्दों के दोष बदोश कुफार के खिलाफ लड़ा करती थी, मगर अब यह औरत जो जिहाद में मर्द के लिए आधी कुव्वत थी, मर्द की तफरीह और अयाशी का जरिया बन गई है। उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि कौम की आधी जंगी कुव्वत खत्म हो गई है, बल्कि औरत एक ऐसा नशा बन गई है जिसने कौम की मर्दानगी को बेकार कर दिया है। सुल्तान अय्यूबी औरत की अजमत बहाल करना चाहता था। उसने एक मंसूबा तैयार कर रखा था जिसके तहत वो गैर शादीशुदा लड़कियों को बाकायदा फौज में भर्ती करना चाहता था। उसके तहत हरम भी खाली करने थे, मगर ऐसे एक काम वो इसी सूरत में नाफिज कर सकता था कि सल्तनत की खिलाफत या इमारत उसके हाथ आ जाए। यह मुहिम बड़ी दुश्वार थी। उसके दुश्मनों में अपनों की तादाद ज्यादा थी और वो जानता था कि कौम में ईमान फरोशों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसे ये मालूम नहीं हुआ था कि उसका एक मुअत्तमद खास और हुकूमत के राजों का रखवाला खादिमुद्दीन अलबर्क भी एक नौजवान हसीना को घर ले आया है, और ये लड़की उसके हिसाब पर ऐसी बुरी तरह छा गई है कि वह फराइज सल्तनत से बेपरवाह हो सकता है। फौजी मेले में मिस्र के लोग सुल्तान अय्यूबी की फौजी ताकत से मरगूब नहीं हुए, बल्कि उसे इस्लामी और मिस्री फौज समझकर उससे मुतासिर हुए थे। सुल्तान अय्यूबी तकरीरें करने वाला हाकिम नहीं था, लेकिन उस दिन इतनी बड़ी इज्तिमा से उसने खिताब करना जरूरी समझा। उसने कहा कि यह फौज कौम की असमत की मुहाफिज और इस्लाम की पासबान है। उसने सलेबियों के आजाद